So hello students, today we are going to start our chapter number 6, lines and angles. In this chapter we will study about the lines and the angles. Our first question from exercise 6.1 is, so just figure is given in your question. Draw the figure. The figure is like this. This is the figure AB and OD. This is O, this is D, this is B, and this is E, and this one is C. In this question it is given that AB and CD intersect at O. This AB, this CD is intersect at O. If AOC plus BOE equal to 70, it is given AOC plus BOE equal to 70 degree. This is AOC, this one is BOE. So it means this angle and this angle. इन दोनों एंगल का सम दिया है 70 डिग्री. BOD is 40. Now we have to find out angle BOE. To find angle BOE and number 2 reflex angle COE. तो ये हमें फाइंड करना है. तो लेट अस स्टार्ट. देखो सबसे पहले हम देखें ये दोनों एंगल AOC और BOE कहाँ है. AOC मीन्स ये, BOE मीन्स ये. अगर इन दोनों के साथ इसको भी ले लें तो ये पूरा एक सीधी लाइन लीनियर पेयर बनता है. तो हम लोग इस तीनों एंगल का सम डालेंगे और COE की वैल्यू पहले निकालेंगे. तो लेट अस राइट एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री linear pair. LP means linear pair. Now just put the values, whatever the values are given, AOC and BOE. इन दोनों की वैल्यू दिया है. इन दोनों के बदले में हम लिख लेंगे 70 डिग्री. तो जस्ट राइट 70 plus COE equal 180. Now angle COE equal 180 minus 70 degree. So angle COE equal to 110. हम लोगों ने इस एंगल COE की वैल्यू फाइंड कर ली जो है 110. लेकिन हमको रिफ्लेक्स COE चाहिए. तो पहले रिफ्लेक्स COE फाइंड करते हैं, सेकंड वाला. रिफ्लेक्स COE, रिफ्लेक्स निकालना होगा. तो ये जो COE है इसको छोड़ के इट मीन्स इसको माइनस कर देंगे पूरा 360 से. तो दिस इज 360 माइनस एंगल COE. तो 360 माइनस 110 एंड दैट इज 250. दिस इज द फर्स्ट solution. Now the second is BOE. To find BOE, just see where is BOE. BOE इस एंगल को फाइंड करना है. तो और BOD हमको दिया हुआ है, ये हमको पता है. तो इस तीनों को ले लें तो फिर लीनियर पेयर ऐसे बनता है, CD बनता है, CD कंप्लीट होता है. तो जस्ट राइट डाउन कि नाउ एंगल COE, दिस वन, एंगल BOE एंड प्लस एंगल BOD इक्वल 180. ये भी लीनियर पेयर बनाता है इसलिए भी 180. COE की वैल्यू है 110, BOE की वैल्यू है हमको पता करना, एंड BOD की वैल्यू 40 दिया हुआ है. तो नाउ कैलकुलेट दिस. BOE
equal to 180 minus 110 and minus 40. So BOE equal to 180 minus 150. Therefore BOE equal to 30. So in this way we got the value of reflex COE and BOE. Okay. Now for the next question. For the next question, let us draw the figure at first. A line segment is there and figure is like this, and now this is the perpendicular. This is A, this is B, and this one is C. This is O, XY, PM. This is P, this is M. This is N, and this one is Y. Okay. Okay. So given this is question number 2. Given angle POY equal to 90, A ratio B equal to 2:3. To find C. C पता करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी. तो just see how can we find this. Solution. Angle POY equal to 90 degree given, therefore POX is also 90 डिग्री. अगर इस साइड 90 डिग्री होगा तो इस साइड भी ये दोनों मिलके 90 बनाएंगे, POX, क्योंकि ये दोनों एंगल मिलके लीनियर पेयर बनाते हैं. ओके. अब POX में दो एंगल है, A और B. ओके. नाउ लेट A इक्वल टू 2x and B इक्वल टू 3x. A को 2x मान लिया, रेशियो दिया हुआ है, और B का तो 2x 3x. तो ऐसा करने से ये हो गया 2x plus 3x इक्वल टू 90. इट इज 5x इक्वल टू 90. तो x इक्वल टू 90 by 5. दिस इज 18. x इक्वल टू 18 डिग्री. x 18 है तो B का वैल्यू क्या होगा? एंगल B इक्वल टू 3x था, तो B इक्वल टू 3 इंटू 18, B इक्वल टू 54. ओके. अब आप देखो कि B और C ये दोनों एंगल, ये और ये दोनों मिलकर एक सीधी लाइन बना रही हैं, BC. ये B और C मिलकर एक MN लाइन ड्रॉ हो रहा है, तो फिर ये लीनियर पेयर है. तो अब लिख सकते हैं कि नाउ B plus C equal to 180. Linear pair. Value of B is 54. C निकल आएगा यहाँ से. C equal to 180 minus 54. C equal to 126. So this is the value of C. Now the question number 3. Now for the question number 3. Figure has been drawn also here. This is a triangle. PQRST. So given, this is question number 3. Given angle PQR equal to angle
आर क्यू टू प्रूव एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये प्रूव करना है। तो प्रूफ देखिए, फिर वही चीज है, एंगल पी क्यू आर और इसके साथ में इस एंगल को ले लें पी क्यू एस को, तो फिर ये लीनियर पेयर बन जाता है। उसी तरह से पी आर क्यू इसके साथ में अगर हम इस एंगल को प्लस कर दें पी आर टी को, तो ये दोनों मिलकर भी सीधी लाइन बनती है, लीनियर पेयर बनता है, तो 180। तो पहले ये करें, तो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये गिवन है इक्वल। अब एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, ये पी क्यू आर एंड पी क्यू एस इक्वल टू 180, लीनियर पेयर, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे तरफ से ऑल्सो पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180, ये भी है लीनियर पेयर। लेकिन एक काम करते हैं, यहां से हम लोग पी क्यू एस की वैल्यू निकालते हैं, तो हम लिखेंगे पी क्यू एस इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी क्यू आर, इसको हम लिखें इक्वेशन नंबर 1। कुछ नहीं किया, इस पी क्यू एस को यहाँ रखा, पी क्यू आर को साइड ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, हम पी आर टी की वैल्यू निकालेंगे, तो लिखेंगे एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 माइनस पी आर क्यू। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये आपको पता है कि पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों इक्वल है। मतलब 180 से ये जो माइनस हो रहा है इक्वेशन 1 में और 180 से जो माइनस हो रहा है इक्वेशन 2 में, ये दोनों नंबर सेम है। तो जो 180 से अगर ये नंबर सेम माइनस हो रहा है, तो जो बचेगा वो भी सेम होगा। तो ये जो बचेगा पी क्यू एस की वैल्यू जो आएगी और इधर पी आर टी की वैल्यू जो आएगी, वो दोनों इक्वल होगी, दोनों सेम होगी। क्योंकि 180 से सेम नंबर माइनस करने पे ये आता है, यहाँ भी 180 से सेम नंबर माइनस करने से ये आता है, बिकॉज इट इज गिवन इक्वल। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये जो बचता है एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, बस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। एक ऐसी लाइन है, फिर यहां से ऐसा है, यहां से ऐसा है, ये x, ये y, ये z और इधर w, ये O है लेकिन ये है W। A B C और ये D। ओके, तो इस क्वेश्चन में दिया है गिवन x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो टू प्रूव AOB इज ए लाइन, तो AOB को एक लाइन प्रूफ करना है, AOB इसको एक लाइन प्रूफ करना। तो अगर आप x प्लस वाई 180 प्रूफ कर दें या z प्लस डब्ल्यू 180 प्रूफ कर दें, तो इसको लाइन मान लिया जाएगा। चलिए करते हैं प्रूफ। हमको ये पता है कि किसी भी पॉइंट पे कि वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स
on a given line, on a given point is, किसी भी एक पॉइंट पे जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सबका सम 360 होता है। तो इस पॉइंट O पे ये चार एंगल हैं, 1 2 3 4, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इन सबका सम 360 होगा। तो देयरफॉर x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360। सिंपल क्वेश्चन है। x प्लस वाई को हमने ऐसे लिखा, w प्लस जेड के जगह पे हम x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो लिख डालेंगे, फिर ये हो गया 2x प्लस 2y इक्वल टू 360। जस्ट टेक 2 एज कॉमन, तो x प्लस वाई इक्वल टू 360 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 360 बाई 2। सो x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो x प्लस वाई 180 हो गया, तो देयरफॉर AOB इज ए लाइन। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चलेंगे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन नंबर 5 में। तो जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 5, फिगर इज ऑल्सो गिवन, एक परपेंडिकुलर है ये, और यहां से एक लाइन ऐसे आती है। इसका नाम है POQ। POQ, ये POQ है। ऊपर है RS, इधर S इधर R। तो गिवन है कि OR परपेंडिकुलर PQ, ये OR परपेंडिकुलर है PQ पे। तो प्रूफ करना है एंगल ROS इक्वल 1/2 एंगल QOS माइनस POS। चलिए प्रूव करते हैं इसको। देखो, अगर OR परपेंडिकुलर है PQ पे, तो आप लिख सकते हो कि सिंस OR परपेंडिकुलर PQ, देयरफॉर एंगल POR इक्वल एंगल QOR। POR QOR दोनों 90 डिग्री के होंगे, 90 डिग्री ईच। चलिए अब POR को ब्रेक करना है। POR, इसमें दो एंगल है, ये दोनों को प्लस में डालें। एंगल POS प्लस एंगल ROS, ये और ये दोनों को प्लस करने से बनता है POR। इस साइड भी QOR में हम लोग थोड़ा अलग ढंग से लिखेंगे। पहले लिखेंगे एंगल QOS आगे तक चले गए, लेकिन ये एंगल था सिर्फ यहाँ तक, तो इतना आगे गए, कितना आगे ROS, ये एंगल एक्स्ट्रा ले लिए, जितना एक्स्ट्रा लिया है उतना माइनस कर देंगे। अब हिसाब बराबर, ROS को एक साथ लो एक तरफ, तो ROS प्लस ROS इक्वल QOS माइनस POS। इस दोनों को प्लस करेंगे तो 2 एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस POS। वो है ये, therefore एंगल ROS इक्वल टू QOS माइनस POS अपॉन 2। देखिए प्रूव हो गया, QOS माइनस POS अपॉन 2। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 6। कुछ ऐसा है कि XYZ इक्वल टू 64 डिग्री। तो एक XYZ बनाना है,
वाई जेड। एक एंगल है वो है 64, तो ये x लिया, ये y लिया और ये z। 64 का एंगल है। xy इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, xy को P तक ले जाना है, मतलब और आगे, तो ये है पॉइंट P। ओके, अब क्वेश्चन में आगे है कि ड्रॉ फिगर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इफ y क्यूब बाइसेक्ट जेड वाई पी। जेड वाई पी, इसको y क्यूब बाइसेक्ट कर रही है, ये क्यू ले ली, तो ये जो y क्यूब है, ये लाइन इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होगा। कौन सा, ये और ये। तो इसको हम x ले लेते हैं दोनों को। अब आगे हमको बताना है कि फाइंड एक्स वाई क्यूब। एक्स वाई क्यूब, ये एंगल फंडा करना है, मतलब कि एक्स वाई क्यूब में ये और ये दोनों आ जाएगा 64 प्लस एक्स। तो पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करें। गिवन में लिख सकते हो कि एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज produced to P, y cube bisect angle ZYP। to find करना है XY cube and second reflex QYP। ओके, चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले लीनियर पेयर एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। एक्स वाई जेड की वैल्यू है 64, जेड वाई पी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180 माइनस 64, एंगल जेड वाई पी इक्वल टू, माइनस करेंगे 116 आएगा। ओके, जेड वाई पी में 116 है, जेड वाई पी में दो एंगल है, तो x प्लस एक्स इक्वल टू 116, दैट इज 2x इक्वल टू 116, x इक्वल टू 116 बाई 2, 58। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 58। तो अब हम इससे एक्स वाई क्यूब पता कर सकते हैं। तो एंगल एक्स वाई क्यूब 64 प्लस एक्स, 64 प्लस 58, ओके 122। नाउ रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। क्यू वाई पी पहले पता करें कहाँ है। क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी की वैल्यू है x और x है 58, तो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी इक्वल टू 360 minus 58 and this will be 302 degree. और this is all from the exercise 6.1. Okay, bye, thank you, we will meet next video soon.